Hey everyone, welcoming you to Study Nest. So today we will be discussing the important questions of the poem Dust of Snow. Students, मैंने previous video में आपको line by line explanation समझाई थी and today we will be discussing the questions as well. So let's begin. As you know, हमारे क्वेश्चन पेपर में हमें आरटीसीज दी जाती हैं. इस ईयर भी 10th क्लास के बोर्ड्स में आपके पास आरटीसीज आएंगी एंड इफ़ डस्ट ऑफ स्नो की आरटीसी आएगी तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. यू हैव बीन गिवन दिस स्टैंजा. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. आपको ये स्टैंजा दिया हुआ है स्टूडेंट्स. रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. Who is the composer of these lines? Means who is the poet of these lines? You all know who is the poet? Robert Frost. Next question. What are the two negative aspects of nature that Frost used as carriers of positivity? This means रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम में 2 ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स कौन से यूज़ किए हैं जिसको पॉजिटिविटी से रिलेट किया गया है. वी ऑल नो दैट वन इज़ हेमलॉक ट्री एंड द अदर इज़ क्रो. व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? यू ऑल नो दिस. डस्ट ऑफ स्नो का क्या मतलब है यहाँ पे? डस्ट का मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ स्नो. दिस मीन्स स्नो बॉल्स. मीन्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं. डस्ट इज़ नॉट मिट्टी हेयर. डस्ट का मतलब है स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो. Where was the crow sitting and what did it shake on the poet? You all know where was the crow sitting. He was sitting on the hemlock tree and what did it shake on the poet? Shake करके उसने poet के ऊपर क्या फेंक दिया था? You all know that hemlock tree. The crow was sitting on the hemlock tree and dust of snow means particles of snow fell on the shoulders of poet. Now passage 2 में you have been given the second stanza. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. This you all know. We have done the explanations in the previous video. Coming to the next question. The experience saved the poet. ये जो experience था उसने poet का क्या day save किया था? Whole day, few days, some part of the day, the whole week. कौन सा part है? Saved some part. So the answer would be saved some part of the day. Next question. Which word is the synonym of feel, remorse or regret as used in the stanza? We all know इस stanza में regret का क्या मतलब है, कौन सा word regret से describe करता है, which is rued. How did the dust of snow affect the poet? Dust of snow ने poet पे क्या effect डाले थे? It made him energetic? No. It changed his mood? Yes, it changed his mood. What is the poet trying to suggest? इस पोएम में आपको ये क्वेश्चन बताना है कि यहाँ पे जो पोएट है वो क्या सजेस्ट करना चाहते हैं. आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन. Coming to the next important question. What is the central message for us in our hectic life with reference to the poem Dust of Snow? Means हमारी hectic life में, means जो हमारी busy life होती है उसमें हमें इस poem से क्या message सीखने को मिलता है. With reference to the poem Dust of Snow, इस poem के reference से the underlying message for us in our hectic life is that we should enjoy nature to the utmost. इस poem से हमने ये सीखा है बच्चों that हमें अपनी life में, अपने hectic life में, hectic schedule में हमेशा nature को enjoy करना चाहिए to the utmost means to the greatest possibility and we should have a positive outlook even towards simple acts between because they can lead to the learning of greater lessons of enjoying life. Means हमारी life में कितना भी hectic schedule क्यों ना हो, कितने भी busy क्यों ना हो जाए, हमें हमेशा positive रहना चाहिए, positive outlook show करना चाहिए. even जो simple acts होते हैं, जो easy छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनमें भी हमेशा हमें positive रहना चाहिए. we should never be negative because they can lead to the learning of greater lessons of enjoying life. Means हमारी life के जो छोटे छोटे moments होते हैं, छोटे छोटे पल होते हैं, उनको भी हमें greatest possibility तक enjoy करना चाहिए positive रह के so that हम उससे कुछ learn कर सकें हमारी life के कुछ greater lessons.
What does the poet Robert Frost want to convey through the poem Dust of Snow? इससे आपको सेम आंसर इसी रेफरेंस में आपको मिल जाएगा, आप इसी से रिलेटेड अपना आंसर लिख सकते हैं. ब्रीफली डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ द पोएम. ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनका सिमिलर सा मीनिंग है, आप इसी से रिलेटेड अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. A simple moment has the potential to change our mood and perspective. This question means कि हमारी लाइफ का एक सिंपल मोमेंट होता है जिसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है, इतनी कैपेबिलिटी, इतनी ज़्यादा जिसको कहते हैं हम, जितनी क्षमता होती है टू चेंज अवर मूड एंड पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक इंसान का खुद का एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव मतलब उसका खुद का नज़रिया. तो हमारे ऐसे सिंपल मोमेंट्स में ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे हमारा मूड चेंज हो सकता है और हमारा नज़रिया चेंज हो सकता है. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. और हमें इसको एक्सप्लेन करना है विद द रेफरेंस ऑफ दिस पोएम. The poet tries to convey that even simple and ordinary incidents have great significance in our life. यहाँ पे पोएट आपको ये बताना चाह रहे हैं हमारी लाइफ के जो सिंपल और छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, ऑर्डिनरी से सहारन से इंसिडेंट्स होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रेट सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ पे पड़ता है. वी ऑल एग्री. नथिंग इज़ गुड और बैड. कुछ भी गलत या अच्छी चीज़ नहीं होती है. इट इज़ ओनली आवर थिंकिंग दैट मेक्स इट सो. ये सिर्फ हमारा नज़रिया, हमारी थिंकिंग, हमारी जनरल फीलिंग्स, हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि हम एक चीज़ को बैड माने या फिर गुड माने. बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री ऑफ कॉस्ट. जो बेस्ट चीज़ें होती हैं लाइफ में, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स. वी ऑल नो एंड वी शुड ऑलवेज एग्री दैट हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स हमेशा आएंगी, लेकिन हमें उसको पॉजिटिव रह के हमेशा सॉल्व करना है. वी शुड ट्राई टू सॉल्व देम रादर दैन सिटिंग एंड रिग्रेटिंग. और हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए पॉजिटिव रह के, और ना ही हमें उस पर रिग्रेट करना चाहिए. समटाइम्स इवन द सिंपलेस्ट थिंग्स और मोमेंट्स कैन चेंज अवर पर्सपेक्टिव. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में एक छोटा सा मोमेंट आता है, एक सिंपलेस्ट सा मोमेंट आता है जो हमारे पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर देता है, जो हमारे पूरे नज़रिए को चेंज कर देता है. A simple action of a crow who shook off the dust of snow on the poet taught him a great lesson. Means इस पोएम में एक छोटा सा जो एक्शन किया था क्रो ने, उसने कुछ शेक करके, कुछ मूवमेंट करके डस्ट ऑफ पार्टिकल्स को, डस्ट ऑफ स्नो को, पार्टिकल्स ऑफ स्नो को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शोल्डर्स पे गिरा दिया था, जिसकी वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक बड़ा सा लेसन सीखने को मिला. The poet taught him a great lesson. The poet realized that he had wasted his day in repenting rather than doing some useful activity. यहाँ पे जो क्रो है उसकी मूवमेंट्स की वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक लेसन सीखने को मिला था, एंड देन रॉबर्ट फ्रॉस्ट रियलाइज दैट ही हैड वेस्टेड हिज इंटायर डे इन रिग्रेट. उन्होंने अपना जो इंटायर डे था वो रिग्रेट में निकाल दिया था, और अब उनको रियलाइज़ हो रहा था, उनको अफसोस हो रहा था. He understood how to take adverse seasons in stride and work for a better life. और अब उनको समझ आ गया था कि हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हम सॉरोफुल होते हैं, जब हम अपसेट होते हैं, जब हम उदास होते हैं, जब हम बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, जब हमें एनजाइटी फील होता है या हमें डिप्रेस्ड फील होता है, उस टाइम में हमें पॉजिटिव रहना है और अपनी लाइफ को एक बेटर पर्सपेक्टिव से देखना हमें सीखना है. ओके, थैंक यू फॉर टुडे. अगली वीडियो में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग.